Hello students, today we are going to start with the basic question of this topic which is given in the page number 107 and the topic heading is equations of motions by graphical method. Okay, but before starting this particular topic, let me introduce to you a basic terminology, that is uniformly accelerated motion. Today we are going to talk about uniformly accelerated motion again. Okay, first let us see the word motion. What do you understand by the term motion? When the body is changing its position with respect to time at that particular point, we can say that it is doing what? Motion. But here two another words are there, right? Uniformly means equally. And what is this middle word here? Accelerated. Whenever the word accelerated is there, that means there is a change in velocity, and the change is uniformly. That means if the velocity is changing uniformly with respect to time, that kind of motion possessed by the body is nothing but the uniformly accelerated motion. मतलब ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, और ये मोशन जो बॉडी में डेवलप हुआ ये क्या कहलाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और इस मोशन में जो ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, दोनों सेम वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट या बॉडी की अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल क्या थी, उसमें एक्सेलरेशन जो डेवलप हुआ वो कितना था, ये सब चीजें कितने टाइम में डेवलप हुआ, उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सब अगर निकालना है तो मैं कुछ सेट ऑफ इक्वेशन यूज करती हूँ, दैट इज नोन एज equations of motion. And basically there are three equations of motion. What is the first equation? V is equals to u plus at. What is the second one? S is equals to ut plus half at square. What is the third equation? 2as is equals to v square minus u square. That means in this video lecture we are going to cover how we get the term v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and the last one 2as is equals to v square minus u square. ये सब हमको कैसे मिला और ये होता क्या है, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं. समझ में आया इस वीडियो का टॉपिक? ओके. Now see the basic question related to this topic, that is derive the first equation of motion by using graph और by graphical method. मतलब जो पहली इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ना, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? v is equals to u plus at. उसका डेरिवेशन आपको कि वो इक्वेशन कैसे आई ये आपको समझाना है पूरा. समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन 3 में से एक पेपर में आता ही आता है, ठीक है? तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. So student, let us start with the derivation. For the derivation, first we are going to define the terms which we are going to use in the particular equation. Okay. Now consider a body having uniformly accelerated motion moving along a straight line, having initial velocity u, final velocity v, acceleration during its motion small a, and the distance covered by it small s in a certain interval of time small t. ओके. इनिशियली हम लोगों ने क्या किया है, जो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे डेरिवेशन में उस सबको डिफाइन किया है कि भाई एक बॉडी है, बॉडी में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डेवलप हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u थी, फाइनल v थी स्मॉल v, और सिंस वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए बॉडी में क्या डेवलप हुआ? एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? स्मॉल a से, ठीक है. अब बॉडी मूव करी तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है. जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने टाइम में ट्रैवल किया उसको स्मॉल t से. आया समझ में? See student, in question it is mentioned there that we are going to derive the equation by the help of graph, and in previous lecture I had told you about two graph, that is distance time graph. What is the second one? Velocity time graph. Here we are using the term uniformly accelerated motion. That means we are supposed to use a graph which is going to provide us uniformly accelerated motion. And which graph provide us the
information regarding acceleration? Very good. Velocity time graph, because in velocity time graph we are holding both velocity as well as time, and in that particular graph we can see the variation of velocity or the change of velocity with respect to time. Okay, that is why we are going to apply which graph? Velocity time graph. Also student, I had told you that the velocity time graph can be drawn for the following 5 condition, right? यही बताया था मैंने आपको. Now here we are going to use the second condition, that is when the body is moving with uniformly accelerated motion. In that particular situation, how we draw the graph? Here we take velocity on which axis? Y axis, and time on x axis. Okay, why we take? I had already provided you the information, right? सी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो सिचुएशन कंसिडर की उसमें बॉडी को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो मूव कर रहा था, और कैसा मोशन था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, बॉडी स्टेशनरी नहीं थी. जो आप लोगों को मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था उसमें सेकेंड केस था जब व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इस सिचुएशन में बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी. दैट इज वाई वी गॉट अ ग्राफ दैट इज having a straight line passing from origin when the body is doing uniformly accelerated motion. But here the situation is changed. Here when we first saw the body, it was already moving with uniformly accelerated motion. That means the body might be somewhere here on the y axis. यहाँ पे कहीं पे होगी, क्योंकि जब मैंने पहले देखा तो वो मूव कर रही थी, मतलब y axis के कोई पॉइंट में वो बॉडी प्रेजेंट होगी. आया समझ में? ठीक है. तो सपोज इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होएगा? देखिए, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन. बॉडी को मैंने जब पहली बार देखा तो वो कैसे मूव कर रही थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से. तो सपोज ये पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करी कोई बॉडी, पॉइंट बी तक गई. ठीक है, तो इसने यहां से यहां तक मूवमेंट की. अब देखिए यहां से यहां तक जब वो गई तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर यहां पे गई तो उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी थी. आया समझ में? ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ यहां से यहां तक, देखिए हमने बताया था इनिशियल वेलोसिटी u थी यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बॉडी की? v. आया समझ में? ठीक है, तो ये u से v जो चेंज हुई वेलोसिटी, उसके कारण बॉडी में क्या डेवलप हुआ? एक्सेलरेशन. ठीक है, और यहां से यहां मूवमेंट हुआ, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस, जो हमको कैसे मिलेगा? व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. आया समझ में? ये दोनों पॉइंट से हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस परपेंडिकुलर पे यहाँ पे हिट करेगा. आया समझ में? ठीक है, अब इसको जहां पे ये इंटरसेक्शन है वहां पे हम इसका नाम रख सकते हैं. सपोज इट इज अ पॉइंट सी, इट इज अ पॉइंट डी. ठीक है, एंड वी लेबल इट एज अ पॉइंट ई. कुछ भी नाम रख सकते हैं आप. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप ए बी सी डी टर्मिनोलॉजी यूज करें. इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका कंसेप्ट सही रहना चाहिए. आया समझ में? नाउ यहां से यहां तक की वेलोसिटी देखिए, पॉइंट ए से ओ तक की वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज डेजिग्नेटेड बाय द टर्म u. ठीक है, अब ये B से ऑब्जेक्ट के पास जब पॉइंट B में पहुंचा तो उसके पास क्या डेवलप हो गई? फाइनल वेलोसिटी दैट इज डेजिग्नेटेड बाय द टर्म स्मॉल v. आया समझ में? U से V आने तक, उसकी वेलोसिटी चेंज होने तक उसका टाइम कितना लगा? स्मॉल t. आया समझ में? और वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ? स्मॉल a. यही हम लोगों ने इनिशियली डिफाइन किया. ठीक है, ग्राफ कैसे बना समझ में आया? See the next line of the derivation. We know that acceleration is equals to change in velocity divided by time taken. This is a formula to calculate the acceleration, right? Now, from the graph, we can find that what is the change here? Change कब हुआ? जब ऑब्जेक्ट A से B पे गया. ठीक है, तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में? इतना. That means what is the change here? BC. ठीक है, और कितने टाइम में हुआ? ये देखिए कितने टाइम में? AC. अब देखिए ये आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, और हम जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, मतलब AC किसके बराबर रहेगा? OD. ठीक है, और अपोजिट साइड में ये भी आएगा, AO किसके बराबर रहेगा? CD. आया समझ में?
ठीक है। तो चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, दोनों क्या होंगे, सेम, और दोनों ही क्या है हमारे टाइम t। मतलब AC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू t लिख सकती हूँ, दोनों t के बराबर है क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है, राइट। ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे AO इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है रेक्टेंगल के, दोनों इक्वल होंगे। और देखिए ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर, आया समझ में, ओके। नाउ अगेन कम टू द डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट। एक्सेलरेशन को हम डेजिग्नेट या डिनोट किससे करे थे, देखिए बताया था मैंने किससे डिनोट किया था हम लोगों ने, स्मॉल a से रिप्लेस कर दिया। चेंज कितना हुआ, b से c चेंज हुआ, ठीक है, bc। टाइम कितना लगा उसमें, ac, आया समझ में। अब bc की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, लेकिन bc की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, bd माइनस cd कर सकती हूँ, तो मेरे को bc की वैल्यू मिल सकती है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, bc की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करा, इतने भाग से मैंने इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया, आया समझ में कैसे। मेरे को bc चाहिए, मैंने क्या किया, bd माइनस cd, ठीक है, इससे मेरे को क्या मिलेगा, bc, समझ में आया, अपॉन ac, ठीक। अब bd की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट ने फाइनल वेलोसिटी पकड़ ली थी, ठीक है, कितनी है, v, ठीक। और हम जानते हैं cd की वैल्यू AO के बराबर है, क्यों, अपोजिट साइड से रेक्टेंगल का, और इसकी वैल्यू क्या है, u, राइट। तो इसको u से रिप्लेस करा। अब AC की वैल्यू किसके बराबर है, OD, और वो किसके बराबर है हमारा, t। टाइम इंटरवल इतना लग रहा था तो उसको t से रिप्लेस किया, ओके। अब व्हेन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, व्हाट वी गेट, a इंटू t इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब देखिए जो आपको नेगेटिव u दिख रहा है इक्वल्स टू के, अगर मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो ये नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ये मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो ये क्या हुआ, AT प्लस u इज इक्वल्स टू v, राइट। आफ्टर दैट मैथ्स में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है, अगर मैं 4 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 4 करूं, मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, 7। आया समझ में, दोनों ही केस में मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, 7। क्यों, क्योंकि मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो मैं साइड चेंज करके लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, v को इधर लिख सकता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। u को मैंने पहले लिख दिया, फिर AT लिखा, ठीक। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो मेरे को फाइनल रिजल्ट मिल गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, विच इज द विच इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमको डिराइव करनी थी, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट अस सी द आंसर ऑल्सो। Consider the velocity time graph for a body that moves with uniform acceleration as shown below. It is the same thing, uniform acceleration or uniformly accelerated motion, both are the same term, okay. We are considering the same velocity time graph which we had considered for the first equation of motion, okay. But here I had used a color to show you something, okay. We had considered the same, the object had started from the position A, it moved to the position B. Again we had drawn the perpendicular to the x and y axis respectively. Also we had labeled the perpendicular by giving the name E, C and D respectively, ठीक है। सिर्फ नाम रख दिया हम लोगों ने, जैसे प्रीवियस वाले इक्वेशन के लिए रखा था, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था ना, कंसिडर बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को डेजिग्नेट किया था, वैसे यहाँ पे भी आप कोई से भी एक तरीके से आपको डिफाइन करना है, u क्या है, v क्या है, t क्या है, a क्या है, जो भी आप टर्म्स यूज करेंगे ग्राफ में, वो सारे आपको सबसे पहले डिफाइन करने पड़ते हैं, ओके। डिफाइन करने के तरीके दोनों में से एक आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके। लेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल u, फाइनल v, टाइम टेकन t, distance s, acceleration a. Also, the distance traveled by the body is given by the area under the velocity time graph, which is equivalent to the area of trapezium. मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से मूव हुआ A से B, इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ,
अगर इतना डिस्टेंस मेरे को निकालना है तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस में, इसको लेबल किया डी, ठीक है। अब ये जो एरिया, ये पूरा ट्रेपेजियम है, देखिए ओ ए बी डी, ये कंप्लीट ट्रेपेजियम है, इतना ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर, ठीक है। तो अब डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, करेक्ट। नाउ this area of trapezium, as you can see I had used two color, मैंने दो कलर यूज करके इसको हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश की है। देखिए A B C, this is looking like a what? Triangle, exactly. This is the first one, this is the first figure and see the second figure, the green color figure. ये क्या दिख रहा है, किसके जैसे दिख रहा है? रेक्टेंगल। मतलब इस ट्रेपेजियम को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मेरा और इजी हो जाएगा डिस्टेंस निकालना, ठीक है। पहला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर दोनों का एड ऑन कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया। समझ में आया? ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ A C D। आया समझ में? Now again, what is the formula to calculate the area of triangle? Half base into altitude. What is the base here? The base is AC. Fine. यही लिखा है हम लोगों ने AC, half base into height. हाइट देखिए कितनी है? BC, ठीक, यही लिखा। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पे? ओ ए भी है, सी डी भी है, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओ ए लिया है, ओ ए इंटू ओ डी। व्हाट इज ओ डी है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ओडी या एसी कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो यही लिया हमने ओ डी इंटू ओ ए। फाइन। ऑल्सो वी नो डेट ए सी इज इक्विवेलेंट टू टी। AC जो है ये किसके बराबर है? कि ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां गया, कितने टाइम इंटरवल में गया था? हम लोगों ने लिखा है ना, टाइम t, ठीक है। तो OD इज इक्विवेलेंट टू AC इज इक्विवेलेंट टू t, ठीक है। आया समझ में? अब BC, इतनी वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक, ऐसे कर सकते हैं हम। तो कैसे करा मैंने? BC इज इक्वल्स टू BD। BC निकालना है मेरे को, तो क्या करूंगी? BD माइनस CD, BD माइनस CD। BD की वैल्यू कितनी है हमारी? V, और CD की वैल्यू, AO की वैल्यू कितनी? U, तो CD की वैल्यू भी क्या आएगी? U, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या मिली? V माइनस U। अब ये V माइनस U, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं क्या? V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। कैसे? हमने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये सिखाया था आपको। अब देखिए अगर मैं U को इस साइड लेके आऊंगी तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव बन जाएगा। कैसे होगा? V माइनस U इज इक्विवेलेंट टू AT। मतलब V माइनस U की क्या वैल्यू मिली मेरे को? AT। कहाँ से मिली? फर्स्ट इक्वेशन, यहीं पे रख दिया मैंने, ठीक है। ऑल्सो OD की वैल्यू कितनी है? देखिए OD, ये AC के बराबर है, मतलब T, है नी। और OA की वैल्यू देखिए, OA या AO दोनों सेम चीज है, ठीक है। कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। क्या है? U, ठीक। अब ये जितनी भी वैल्यूज मेरे को यहाँ पे लगेगी ऊपर, ठीक है, वो सारी मैंने सब्सटीट्यूट करे। देखते हैं। S इज इक्वल्स टू क्या आएगा? हाफ AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू क्या निकाली? T निकाली थी AC की वैल्यू। फाइन। अब उसके नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए, BC की वैल्यू हमको V माइनस U इज इक्विवेलेंट टू क्या था? AT, फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे AT सब्सटीट्यूट किया। फिर OD की वैल्यू देखिए, OD की वैल्यू क्या है? T। फाइन, T एंड व्हाट इज द वैल्यू अगेन? OA की वैल्यू कितनी है हमारी? U,
ठीक, पूरा सब्सटीट्यूट किया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज s इज इक्विवेलेंट टू ये ut, ये पहले लिख दिया मैंने बताया था एडिशन में हम 4+3 लिखे या 3+4 लिखे, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, ut प्लस हाफ a t इंटू टी का स्क्वायर, यही तो हमको डिराइव करना था। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u to v in time interval t and the acceleration developed in the body is small a. आया समझ में? Now see the next question. Derive the third equation of motion. What is the third equation? V square minus u square is equivalent to 2as. That means we are supposed to find out the relationship between the velocities, the distance and the acceleration. Okay. सी स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई सा भी डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जितने इनिशियल चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, चाहे वो स्मॉल v हो, स्मॉल u हो, a हो, s हो, t हो, सबसे पहले आपको सबको डिफाइन करना है कि ये है क्या, v का क्या मतलब है, a का क्या मतलब है, u का क्या मतलब है, ये सब डिफाइन करना रहता है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पेपर में जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको बताना है वी आर कंसिडरिंग वन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी, जो हमने प्रीवियस में देखा है ना, दोनों में दो तरीके से लिख सकते हैं, बताया था ना मैंने। ठीक है, तो आप पहले वो लिखेंगे, इसके बाद डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच बेसिकली रिलेशनशिप देखने, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगेन देखिए हम सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, बी पर गया, ए से स्टार्ट किया, यहाँ से हाथ चला, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, u। ठीक है, अब उसके बाद जब वो v पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v। यहाँ तक आपको क्लियर है, पहले भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, और यहाँ से वहां चलने में इसको कितना समय लगा, t, स्मॉल t। वेलोसिटी चेंज हुई, इसके कारण एक्सेलरेशन क्या डेवलप हुआ, स्मॉल a। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, स्मॉल s। ठीक है, आया समझ में? नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्विवेलेंट टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अभी प्रीवियसली हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD नाम लिखना है। ठीक है, OABD इज इक्विवेलेंट टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड इसमें कौन सी है, OA या AO, जो भी आप नाम रखे, एंड BD। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। व्हाट इज द हाइट हियर, पैरेलल साइड के जस्ट अपोजिट वाला हाइट होता है ट्रेपेजियम में, क्या है ये, OD। ओके, अब देखिए OA की वैल्यू क्या है, U, और BD इसकी वैल्यू क्या है, V। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, OD की वैल्यू हमको पता है क्या है, T। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्या जानते हैं हम लोग, v is equals to u plus at, v minus u is equivalent to at। ठीक है, अब t की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगी, इस a को नीचे शिफ्ट कर दूंगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मेरे को t की वैल्यू मिल गई। अब t की वैल्यू क्यों निकाली थी हमने, क्योंकि यहाँ पे हमको t की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमको t की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये a को मैं बाहर निकाल सकती हूँ ब्रैकेट के। अब देखिए v प्लस u प्लस v था, तो v प्लस u लिख सकती हूँ मैं, इंटू v माइनस यू। ये एक फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली हमने मैथ्स में पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर a की वैल्यू क्या है हमारी, v, और b की वैल्यू u। आया समझ में, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू v प्लस u इंटू v माइनस u। आया समझ में? ठीक है, तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो अंदर क्या मिलेगा, 1/2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस 2a गेट मल्टीप्लाइड विथ s and what we got at the final, v square minus u square is equivalent to 2as, which is the third equation of motion। आया समझ में? ये ग्राफ के हेल्प से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन डिराइव की।
Now, after finishing the three equation of motion, let us see the last topic, that is uniform circular motion. देखिए ये जो वर्ड है ये तीन चीजों से मिलके बना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वी आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ मोशन, राइट? That means whenever the object is changing its position with respect to time, that means the object is doing what? Motion, right? And the circular word is attached, that means the object is moving in a circular path. That kind of motion is known as circular motion. Already I had told you, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था मोशन में, उस टाइम बेसिक में बताया था आपको, राइट? अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड अटैच है प्रीफिक्स में, दैट इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन तरीका क्या है? यूनिफॉर्म है. मतलब कैसा? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. आया समझ में? दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लुक एट द फैन इन योर रूम. देखिए फैन में जो तीन ब्लेड्स हैं, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो वो तीनों ब्लेड मूव करना चालू होते हैं, ठीक है? मूव करते हैं और एक समान मूव करते हैं. ऐसा नहीं होता फर्स्ट वाला ज्यादा मूव कर रहा है, सेकेंड वाला कम मूव कर रहा है. और इसी तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? इस तरीके का मोशन आपने और भी बहुत सारी जगह पे देखा है डेली लाइफ में. चाहे हम मैरी गो राउंड वाले झूले की बात करें, कोई सा भी झूला देखें, वहां पे कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर्कुलर ट्रैक में कोई एथलीट मूव कर रहा है तो वहां पे कौन सा मोशन परफॉर्म होएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, देखिए. when an object moves in a circular path with uniform speed, it is called uniform circular motion. आया समझ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ठीक है. And this is all about the basics of this chapter.